Assalamu alaikum, everybody. I hope everyone is fine and safe. Today, we shall try to understand the language of a map. Every human being, as you know, in day to day life, makes the use of language to express their ideas, views, opinions. जो इंसान है अपना व्यू पॉइंट ओपिनियन आइडिया दूसरे इंसान को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है सो इन सिमिलर मैनर in order to make efficient and effective and proper utilization of the maps, it is important for everyone to understand the language of a map. Now, what is a language? Language क्या होता है? Language basically एक तरीका होता है of expression का. राइट लैंग्वेज जो है वो रिटन हो सकता है ओरली हम बता सकते हैं सो लैंग्वेज जो है वो in order to express your views, opinions, etc., we make the use of language. Now, in today's lecture, we shall understand the language of map. Now, dear students, the language of map has three important features, namely directions, scale, and last one, legend or key. We shall discuss this and know about these features one by one, and these three features are known as the language of map. अगर हमसे कोई पूछे what is the language of map, we should be able to answer direction, scale, legend और key जो होता है they constitute the language of map. The first one, dear students, is direction. Directions are the most important part of the map and they help us to locate places easily. Dear students, this picture is one of the most common symbols found on a map जो mostly एक मैप पे जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं उस पे ये सिंबल जो है ऑलमोस्ट हर किसी मैप पे प्रेजेंट होता है एंड इफ़ यू आर एबल टू सी दैट ये एक एरो है जिसके ऊपर क्या लिखा है एन लिख कर है एंड व्हाट डज एन डिनोट इट डिनोट्स नॉर्थ डायरेक्शन सो व्हाट हैपन्स इन ईच एंड एवरी मैप हम लोगों को एक डायरेक्शन के बारे में दैट इज़ किस डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में एंड वंस वी आर अवेयर कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ से है we can easily locate the other three directions. The children, you're aware that there are four directions, north, east, south and west. So अगर हम लोगों को पता हो कि north direction किस तरफ में है हम आसानी से locate कर सकते हैं east direction, south direction and west direction. So this is one of the important things to remember and you should be able to recognize this symbol on a map and you should get an idea that from this picture what you will get the idea कि जो north direction है वो कहाँ से है. I hope this is clear to you. Moving further, now dear students, we are aware of the fact that there are four directions but जो वो चार direction है north, east, south and west उनके बीच में भी चार directions आते हैं. For example, here between the north and east direction lies northeast, between the south and east direction lies southeast. Moving further, between the south and west lies southwest and between north and west जो है कौन सा direction आता है northwest. So other than our four directions, main directions north, east, south and west और भी चार directions है namely north east जो north और east के बीच में आता है, south east जो south और east के बीच में आता है, south west जो south और west के बीच में आता है and lastly north west जो किस direction के बीच में आता है north और west के बीच में. I hope this is clear to each and every one of you. Now the second important feature of the language of the maps, dear students, is a scale. Now in your geometry box you will find a ruler जो होता है वो क्या होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम डिफरेंट मैथमेटिकल जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो हम यूज़ करते हैं टू मेजर डिस्टेंसेस एट्सेट्रा. सो जो आपके मैप्स में है एक इंस्ट्रूमेंट वैसा ही होता है. नाउ व्हाट इज़ अ स्केल?
स्केल जो है वो मेजर करता है द साइज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ऑन अ मैप. जब भी हम लोगों को जो डिफरेंट प्लेसेस ऑन द मैप का साइज़ मेजर करना हो या फिर टू डिफरेंट प्लेसेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वी कैन से दैट इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम ये चीज़ कर सकते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्केल बोलते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट की जो डिस्टेंस होती है बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस वो किलोमीटर्स में होती है. एंड एक स्केल जो है फिर उसको किलोमीटर्स की डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए हमें काफ़ी बड़ी सी स्केल की ज़रूरत पड़ेगी. इन ऑर्डर टू मेक इट कन्वीनियंट, आसान बनाने के लिए उस इंसान के लिए जो मैप का इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट डू वी डू, जो किलोमीटर्स की डिस्टेंस है वो हम सेंटीमीटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ मैप, बिकॉज वी से दैट a scale is the ratio of the distance between two places on the map to the actual distance between these two places on the ground. What does it mean? इसका मतलब क्या है? For example, dear students, फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन यूनियन टेरिटरी जो जम्मू एंड कश्मीर है और पंजाब के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर्स है. Here, if you can see that जो 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500 पॉइंट्स जो है ये किलोमीटर्स में है. सो फॉर एग्जांपल, अगर जम्मू एंड पंजाब के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 100 किलोमीटर्स. सो हम 100 किलोमीटर्स जो मैप पे नहीं दिखाएंगे, तो उसके लिए तो बड़ा सा स्केल हम लोगों को चाहिए. तो हम क्या करते हैं, हम मैप में जो ये डिस्टेंस है दैट इज़ जो 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो किस से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सेंटीमीटर. सो वी कैन से दैट कि ऑन अ स्केल जो 1 सेंटीमीटर है, जो मैप का स्केल है, जो 1 सेंटीमीटर जो है इट इज़ इक्वल टू 100 किलोमीटर्स, विच मीन्स कि अगर किसी जगह के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, हम मैप पे वो कहाँ दिखाएंगे, 1 सेंटीमीटर के पास. अगर सिमिलरली किसी दो जगह के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर्स है, तो मैप पे वो दिखाया जाएगा एज 2 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी डू इन मैप्स, जो मैप का स्केल होता है, जो किलोमीटर्स की डिस्टेंस है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर में. I hope this is clear to you. And one important thing to remember here, dear students, is that maps are always drawn to scale. The scale is usually mentioned in the corner of the map. जो आपकी स्केल है, जो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे विजिबल है इस टाइम, ये कहाँ पे यूजुअली हम देख सकते हैं, जो कॉर्नर होता है मैप का उस पे. Now here, dear students, we shall study the third and the last feature of the map, that is legend, or it is also known as a key. Now what is a legend or key? जो legend और key है ये basically क्या एक्सप्लेन करता है कि जो कलर्स होते हैं या जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो मैप पे होते हैं उनका मतलब क्या होता है. एंड इट इज़ यूजुअली गिवन इन अ बॉक्स इन वन कॉर्नर ऑफ द मैप लाइक दिस. अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स पे भी देखें तो आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई देगा बिल्कुल एक कॉर्नर पे, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंट कलर्स है लाइक वाइट, ब्राउन, ऑरेंज, बेज एट्सेट्रा. एंड बिल्कुल उसके साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, लाइक कि जो ये कॉर्नर में जो बॉक्स दिया गया है दिस वन, ये आपको बताता है अबाउट रिलीफ फीचर. ये किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, माउंटेन्स के बारे में हो सकता है, स्नोफॉल के बारे में हो सकता है. सो दिस वन इज़ अबाउट रिलीफ. एंड अगर आप देखोगी जो वाइट कलर है वो क्या बोलता है हमें कि वाइट कलर जो है दैट इज़ अबाउट 6000, द ब्राउन वन इज़ 4500 to 6000 एट्सेट्रा. And there are also some important symbols that you will find mostly on the maps. कुछ ऐसे symbols होते हैं जो आप हर किसी मैप पे पाओगे. Like the first one जो हमें एक एरोप्लेन एक सर्कल में दिखता है which depicts that it is an airport. Similarly then there is a bridge and then you can see कि एक cross है that represents a church. A green rectangular represents a forest. A cross in the circle represents hospital. Red square represents house. उसके बाद lake आता है. Then comes PO which denotes post office, railway, and if you see एक blue color की wave जो है that means a river. Two parallel lines road.
And then comes a blue square tank, and then are two other symbols like temple and tree. So these symbols, dear students, are the most commonly used symbols ऑन अ मैप. अगर हम कोई भी मैप उठा के देख ले उसमें ये सिंबल्स होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई कोई फॉर एग्जांपल कोई टूरिस्ट जो है वो कश्मीर आता है, तो मैप में जब वो सिंबल देखेगा ही विल गेट एन आइडिया कि एयरपोर्ट कहाँ से है, रेलवे कहाँ से है, हॉस्पिटल कहाँ से है इन केस ऑफ द इमरजेंसी. Now moving ahead, dear students, आई हैव ट्राइड टू मेक वन लेजेंड. ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल है, ये मैंने खुद से बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए. जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया है टू डिनोट डिफरेंट फीचर्स. फॉर एग्जांपल पिंक कलर मैंने इस्तेमाल किया है नॉर्दर्न माउंटेन्स को दिखाने के लिए, रेड कलर आइलैंड को दिखाने के लिए, ग्रीन कलर कोस्टल प्लेन्स, देन कम्स द डेजर्ट एंड देन कम्स द नॉर्दर्न प्लेन्स. सो जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, कुछ जो कॉमन सिम्बल्स है या कुछ ऐसे सिम्बल्स है जो आपको हर किसी मैप में मिलेंगे. अब कुछ कलर्स है जो आपको ऑलमोस्ट हर किसी मैप पे मिलेंगे. एंड कौन कौन सा कलर है एंड व्हाट डज ईच कलर डिनोट, लेट्स स्टडी. ब्लू कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडीज सच एज ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा. अगर आपके मैप पे ब्राउन कलर है दैट विल रिप्रेजेंट हिल्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. येलो कलर विल रिप्रेजेंट हॉट डेजर्ट. डेजर्ट्स आर बैरन लैंड. जो बैरन लैंड होता है कोई ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी कोई कल्टिवेशन नहीं होती है बिकॉज देयर इज़ द एब्सेंस ऑफ वाटर. एंड एज वी नो फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी थिंग, चाहे हमें क्रॉप्स कल्टिवेट करने हो, पेड़ पौधे कल्टिवेट करने हो, उसके लिए पानी ज़रूरी होता है, लेकिन उस जगह बिल्कुल भी पानी नहीं होता है. दैट इज़ वाई दैट प्लेस इज़ नोन एज desert. Then comes white color, क्या डिनोट करता है, cold desert and snow covered areas. It's a common sense कि जो जब भी हम white color देखते हैं, white color से हम लोगों को आइडिया मिलता है बर्फ़ का. सो जो भी स्नो कवर्ड एरियाज़ एंड जो कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख है वो एक डेजर्ट है. एंड कोल्ड क्यों है, बिकॉज द टेम्परेचर्स आर रियली लो. यू नो दैट लद्दाख में एक जगह है द्रास जहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है. एंड देन कम्स फाइनली ग्रीन वन. अगर आपके मैप में ग्रीन कलर होगा दैट यूजुअली डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ प्लेन्स एंड लोलैंड्स. आई होप डियर चिल्ड्रन today's lecture is clear to you. Now, what did we study in today's lecture? We studied that the language of the maps include directions like north, east, west and south. Scale जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो places है on the map उनके बीच की distance measure करने के लिए. And finally legend और key जो हमें explain करता है कि जो different symbols है या different colors जो map में इस्तेमाल किए गए हैं उन symbols या colors का meaning क्या है. In the next lecture, we shall start our new chapter, namely India and its neighboring countries, our country and its neighbors, जो आपका दूसरा chapter है. Till then, have a great day. Thank you.